वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी में। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च मेथड्स और एक रिसर्च एप्टीट्यूड का ही जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो उससे पहले हमने जो कल हमने लेक्चर में जो कंप्लीट किया था वो हमारा पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड था। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, जो सीरीज चल रही है, तो उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिसर्च मेथड से रिलेटेड है कि कौन कौन से रिसर्च मेथड होते हैं। तो आज उन पे हम बात करेंगे, उस पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बिफोर दैट आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे लेक्चर। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये है कि व्हाट आर द वेरियस method, the research method we are using in the research while we are doing the research, while we are doing any research study. So in that, these are the topics we are just covering the one by one. So first is the experimental research. So there is various experimental research. The second will be the descriptive methods of the research. Then the historical method, then qualitative methods, and then quantitative methods of research. So these are the various methods on which we are discuss today. We are going to discuss today. So let's start. First of all, the experimental research. So what are the experimental methods of the research? There are various methods of experimental research like the randomized controlled trials. So what is the randomized controlled trial? So randomized controlled trials involve the randomly assigning the participants to different groups, such as a treatment group and a control group. So in that we have to just create two groups. One is called the treatment group and one is called a control group. So in the treatment group, we are intervening some treatment. We are giving some treatment, and we are not doing any intervention. We are not doing any experiment on the control group. It remains the same. It remains the same. There is no intervention or placebo. Intervention को हम क्या बोलते हैं? Placebo भी बोलते हैं. So there is no any placebo is given to that control group, and on the treatment group we are giving some intervention. We are giving some treatment. So after the treatment, then we will compare the both group. If whether there is effectiveness of that treatment we have given on the treatment group or not, on the treatment group. तो जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया है क्या इफेक्टिव है, तो वो हम चेक करने के लिए हम इस तरह की रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमारे पास एक जो ऐसी है जो कुछ पेशेंट या सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल इश्यूज, और ये है कंट्रोल ग्रुप है। ये भी मेडिकल इश्यूज से जो सफर है, ये भी मेडिकल इश्यूज से जो सफर है एक पर्टिकुलर कोई भी बीमारी से। तो हमने इस पे एक मेडिसिन अप्लाई की और हमने चेक किया कि क्या उस मेडिसिन का इसका इफेक्ट हुआ। इनको हमने कोई मेडिसिन नहीं दी, तो फिर हमने इम्पैक्ट देखा कि whether there is impact of that medicine or not. So that is called the randomized control trials. Then the quasi experimental design. So what is the quasi experimental design? So in that randomized control trials, इसमें क्या है, हम रैंडमली असाइन करते हैं हर एक ग्रुप को, जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं डिफरेंट ग्रुप में हम रैंडमली असाइन करते हैं। बट क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है कि हम रैंडमली असाइन नहीं करते, वी आर नॉट randomly assignment of participant to the different group. No, we are not randomly assign the participant to the group, but इसमें हम क्या करते हैं, randomly assign करते हैं, randomly assign the participants. तो इसमें तो हम रैंडमली असाइन करते हैं, बट इसमें रैंडमली असाइन नहीं करते। तो क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें जो भी है हम क्या करते हैं कि वी आर यूजिंग द डिफरेंट मेथड, एवरी रिसर्चर अप्लाइंग द अदर मेथड सच एज द मैचिंग और द नेचुरल ग्रुपिंग टू क्रिएट ए कंपेरेबल ग्रुप फॉर कंपैरिजन। तो इसमें हम एक नेचुरल ग्रुपिंग करते हैं, मींस ऑन द बेसिस ऑफ सम नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचुरल ग्रुपिंग जो किसी के बिहेवियर के हिसाब से उसको हम डिवाइड करते हैं, या कोई भी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और ग्रुपिंग हम करते हैं, हम कोई रैंडमली असाइनमेंट नहीं करते, बल्कि हम उनकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको हम इसको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं। देन प्री एंड पोस्ट डिजाइन। तो इस प्री और पोस्ट से समझ सकते हैं, प्री एंड पोस्ट। तो ये क्या है, वी आर जस्ट कंपेयरिंग द result of the any group which are not tested
and one group which are tested. So after the testing, what is the difference between both the groups? That is the pre and post testing designing. For example, क्लास में दो ग्रुप बना दिए हमने, एक क्लास में दो ग्रुप बना दिए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब क्या किया हमने, ग्रुप ए पे हमने क्या किया, ट्रीटमेंट किया, या ग्रुप ए को हमने एक कोई एक्स्ट्रा लेक्चर दिया, हमने उस लेक्चर के लेने के बाद उसका टेस्ट लिया, और इनको हमने कोई भी लेक्चर नहीं दिया, देयर इज नो एनी इंटरवेंशन, कोई भी हमने एक्स्ट्रा लेक्चर एक्स्ट्रा क्लासेज नहीं ली, और इनका भी हमने टेस्ट लिया, और हमने इनका भी एग्जाम लिया आफ्टर गिविंग ए स्पेशल लेक्चर्स, स्पेशल रेमेडियल क्लास, और कुछ भी क्लास लेके स्पेशल क्लास, रेमेडियल क्लास, उसके बाद हमने इनका टेस्ट किया। फिर इनके बाद हम दोनों के प्री एंड पोस्ट टेस्ट को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये भी है, ये अब इसका ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जैसा हो जाएगा। बट प्री एंड टेस्ट में क्या होता है, सेम ग्रुप पे भी हम स्टडी कर सकते हैं। मान लो एक क्लास है, बीबीए की क्लास है, अब इस बीबीए की क्लास का हमने कोई भी इंटरवेंशन देने से पहले, कोई भी ट्रीटमेंट से पहले हमने एग्जाम लिया। ठीक है, हमने क्या किया, एग्जाम 1 लिया, उसके बाद हमने बीच में क्या दिया, इसका इंटरवेंशन, एक ट्रीटमेंट दिया। क्या दिया ट्रीटमेंट, हमने एक चैप्टर इनको पढ़ाया, एक हमने क्या किया, टीच, कोई भी स्पेशल एक लेक्चर दिया उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर हमने उसका क्या लिया, एग्जाम 2, एग्जाम 2। फिर हम कंपेयर करेंगे, ये हमारा क्या होगा, प्री टेस्ट, ये प्री टेस्ट, ये टेस्ट से पहले क्या रिजल्ट था और आफ्टर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारी क्या होता है, प्री एंड पोस्ट डिजाइन और प्री एंड पोस्ट रिसर्च होती है। कोई भी हमें स्टडी करनी है, कोई भी मेडिसिन दी, मेडिसिन से पहले क्या हालत थी पेशेंट की, और मेडिसिन देने के बाद उस पेशेंट में कुछ सुधार हुआ या ना नहीं हुआ, बस यही हमारा क्या है, प्री एंड पोस्ट डिजाइन। फिर फैक्टोरियल डिजाइन, तो फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है, एक मैनिपुलेशन होती है, दो या दो से ज्यादा कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, उनका कंबाइन इफेक्ट देखते हैं, किस पे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल से। तो हम क्या देखते हैं कि सीधा कंबाइन इफेक्ट ऑफ टू और मोर independent variables, independent variables on dependent variable, on dependent variable। तो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे कंबाइन इफेक्ट देखते हैं। तो ये क्या है, किस लिए है, कि जो हमें मैनिपुलेशन होती है, ये इन्वॉल्व सम मैनिपुलेशन, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इंपैक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। For example, we want to see the yield production of a yield, crop yield। ठीक है, क्रॉप यील्ड क्या होती है, पैदावार होती है, यील्ड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोल सकते हो या पैदावार बोल सकते हो, यील्ड प्रोडक्शन। अब ये क्या है, क्रॉप की जो पैदावार है वो डिपेंड करती है, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज इट डिपेंड, जो पैदावार होती है जो फसल की, वो डिपेंड करती है किस किस पे करती है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, रेन भी हो सकती है, क्वालिटी ऑफ सीड्स, क्वालिटी ऑफ सीड्स, क्वालिटी ऑफ सॉइल्स, क्वालिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। तो ये क्या हो गया हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम कंबाइन इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो हमारे क्या होता है, फैक्टोरियल डिजाइन। अब उसके बाद आता है हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन। तो सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन क्या होता है, जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन पे, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट या ऑब्जेक्टिव पर रिसर्च करते हैं और बार बार हम ट्राई करते हैं, देन वी चेक द इफेक्ट। So we are using the a multiple trial, and we are using the different independent variable on the dependent variable. So then we will check the single subject design, means we are doing the experiment, we are doing the experiment on single participants, single participants, एक ही पार्टिसिपेंट में हम बार बार ट्रायल करके देख रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं, चेंज इन
ड्यूरेशन चेंज करके देखते हैं, चेंज इन ड्यूरेशन और चेंज इन वेरिएबल्स को, या चेंज इन ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट और हम ड्यूरेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको हम एक डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल को हम रिप्लेस करके और उसका बार बार इफेक्ट देखते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, पेशेंट के पास जाता है, उसको वो मेडिसिन सूट नहीं की, तो क्या है, थोड़े दिन बाद बुलाता है, एक हफ्ते बाद आना। तो पेशेंट एक हफ्ते बाद, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद बुलाता है, तो जब वो एक हफ्ते बाद गया, तो अगर वो दवाइयाँ सूट नहीं की, अगर तो उन दवाइयों का इफेक्ट हो गया, अच्छा, तो उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं देगा, वो वही मेडिसिन चलने देगा, सेम मेडिसिन। बट उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ आफ्टर 7 days, तो क्या करेगा, ही विल रिप्लेस द मेडिसिन, वो दूसरी दवाई का, या कॉम्बिनेशन है डिफरेंट कॉम्बिनेशन दवाइयों का, मेडिसिन का। तो इसी तरह है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेडिसिन, वो ना जो डिपेंड करता है, जो पेशेंट है वो डिपेंड है मेडिसिन के ऊपर। तो उसके बाद क्या है, वो एक कंबाइंड डिफरेंट जो है मेडिसिन देगा, मिला जुला के, फिर उनका कंबाइन इफेक्ट देगा, फिर उसको कहेगा कि आप एक 1 वीक के बाद आना। फिर उसके बाद अगर फिर भी मेडिसिन सूट नहीं की, तो वो डिफरेंट उसका ट्रीटमेंट देगा, या डिफरेंट मेडिसिन रिप्लेस करके देगा। तो ये हमारा सिंगल सब्जेक्ट मीन एक ही पार्टिसिपेंट में बार बार डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता है, जब तक कि बेटर रिजल्ट ना आ जाए, जब तक कि फेवरेबल रिजल्ट ना आ जाए। ये हमारा सिंगल सब्जेक्टिव है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड्स ऑफ रिसर्च। So descriptive means we are describing the something, describe the which is already exists, and we are describing the phenomenon which is already exist into the real life. So observational studies we are doing and going for the we are just collecting the information by the observing something. So we are observing any person, any participants. So observation may be direct observation, may be indirect observation. So this is suitable when we are just collecting any facts and any information about any person। कोई भी आप ऑब्जर्वेशन करते हो किसी चीज की, तो क्या होता है, या तो कंट्रोल्ड जो वेरिएबल्स होते हैं, या तो अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं। कुछ चीजें होती हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वट एवर द पार्टिसिपेंट्स या ऑब्जेक्ट रिएक्ट, वी हैव टू रिकॉर्ड दोज ऑब्जर्वेशन। जैसा वो कर रहे हैं उनको होने दिया जाता है, फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, हर एक्टिविटी जो जो भी पार्टिसिपेंट्स या जो भी ऑब्जेक्ट है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो वी आर जस्ट रिकॉर्ड ओनली द थिंग्स वट एवर वी रिसीव एंड वट एवर वी सी and whatever things that occur, we are not interfering that person who are under the observation। So जो भी observation, we are collecting some important fact and information, that is the observation studies। And surveys, through the surveys we are collecting the information by using the various surveys, like the some questionnaire, some interview methods, some schedule, and there may be any other methods। So we are serving means we are collecting the information by filling the questionnaire from the respondents। तो रिस्पोंडेंट से हम क्या करेंगे, क्वेश्चनेयर बनवाएंगे, क्वेश्चनेयर उनसे फिल करवाएंगे, उसके बाद डाटा हमारे पास आ जाएंगे, और हम उसको इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं एज पर अकॉर्डिंग डाटा वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वेज। तो सर्वे बहुत सी कंपनियां भी करवाती है, मार्केट सर्वे भी होता है, और कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड भी सर्वे होता है, कंपनियां ऑनलाइन भी सर्वे करती हैं, ताकि उनको फीडबैक मिलता रहे कस्टमर के बारे में। फिर केस स्टडीज क्या है, केस स्टडीज प्रोवाइड करती है डीप इंसाइट इनटू ए फैक्ट और इन्फॉर्मेशन। एक डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, फैक्ट चाहिए, तो वी डू द फॉर द केस स्टडी। तो केस स्टडीज वी आर डूइंग एंड वी आर जस्ट collecting the various information from the various sources, maybe the primary sources, maybe the secondary sources। तो हम क्या करते हैं, we are collecting the data from the different sources, फिर उसके ऊपर केस स्टडीज करते हैं। तो केस स्टडीज मोर जनरली जैसे वकील क्या करते हैं, वकील क्या फैक्ट्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स को या इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके फिर उसको वो हैंडल करते हैं। तो ये है डीप स्टडी होती है, डीप एनालिसिस ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी डीप इश्यूज, एनी क्रिटिकल प्रॉब्लम। तो उस केस में केस स्टडीज हम करते हैं। तो केस स्टडीज में जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। देन द नेक्स्ट इज द correlational study। तो correlational studies tells about that how the one variable is correlated with the another variable। So it shows the relationship between shows the relationship between dependent and dependent and independent variables, independent variables। तो एक रिलेशनशिप शो करती है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में।
तो डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट मींस व्हिच डिपेंड एनी अनदर वेरिएबल, इंडिपेंडेंट मींस व्हिच आर टू बी गोइंग टू बी ऑब्जर्व थ्रू ए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को जो ऑब्जर्वेशन करेगा वो कौन करेगा? इंडिपेंडेंट ना, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो बेस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब देखो कोई भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना है, कोई तो ये शोज ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। किस कारण क्या हुआ, किसी चीज का होने का क्या कारण था, कोई भी एनीथिंग हैपन, तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट। तो इनके बीच का ही हम जो रिलेशन निकालते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से, वो हमारा कोरिलेशनल स्टडीज होगी, दो वेरिएबल्स के बीच में हम निकालते हैं। लाइक द व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द डिमांड ऑन द सप्लाई। तो डिमांड का जो इम्पैक्ट है सप्लाई पे क्या होता है? तो यहाँ पे देखो डिमांड क्या है, जो है जो सप्लाई है डिपेंड करती है किस पे? डिमांड पे। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, और डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम। इसी तरह अगर प्राइस एंड डिमांड का करें तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। तो डिमांड is totally depend on the price. If price will increase, the demand will decrease. If the price will decrease, the demand will be increase. तो it's vice versa. तो इसमें जो डिमांड है ये टोटली डिपेंड ऑन द प्राइस, इस पे डिपेंड करती है प्राइस। तो प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो डिमांड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये हमारी कोरिलेशन स्टडीज है। इफ यू वांट टू सी द इंपैक्ट ऑफ द प्राइस ऑन द डिमांड, देन वी विल डू द कोरिलेशन एनालिसिस। Content analysis. So content analysis shows that how we can just do the study and do the research on the basis of some content. Means some audio, some video files, some fact, कोई फैक्ट्स इंफॉर्मेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऑडियो वीडियो फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स से हम कोई भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वो कंटेंट एनालिसिस होता है। कि डिफरेंट कंटेंट को यूज करके हमें जो रीजनेबल इंफॉर्मेशन होती है वो निकालते हैं। अब ऑडियो का पैटर्न देखना हो, किसी वीडियो का पैटर्न देखना हो, ट्रेंड देखना हो, तो बहुत सारे जो मीडिया स्टडीज हैं, ये मीडिया में रिसर्च करते हैं, जो मीडिया स्टडीज के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, दे आर डूइंग द कंटेंट एनालिसिस। कुछ सोशल मीडिया एनालिस्ट हैं, दे आर डू द कंटेंट एनालिसिस एंड कंटेंट रिसर्च। तो सोशल मीडिया में हम यूज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में यूज करते हैं, दैट इज द कंटेंट एनालिसिस। तो फॉर दैट we have to collect the information from the audio video fact information and any social media profile of any participants. So we are observer, we have to know the information about that person by using all these components and elements. Next is the historical method of the research. So now the historical method of the research, there is archival research. So archival research means we are collecting the information on the basis of some historical facts, historical data, any facts, historical facts। जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च रिलेटेड टू द archival. तो archival means all the research which is related to the history, and we are doing the research on art, design, or any ancient time data and facts. So we are comparing all those facts and we are collecting the information by using, by going any events. If we are collecting data about any events or we are visiting any site, किसी साइट पे विजिट करके कोई हिस्टोरिकल साइट्स है उस पे जाके हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज द आर्चिवल रिसर्च। तो इट रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी। देन the case studies. Case studies means we are doing any case studies on any historical monument or any historical data or any another another area of the research which is related to some ancient related thing. कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट है या कोई एनी ऑर्नामेंट्स है, वेरी ओल्ड ऑर्नामेंट्स, या कोई भी स्कल है, हमें कोई स्कल मिला बहुत पुराना है, या कोई जो आजकल मम्मी मिलती हैं तो मम्मी के ऊपर रिसर्च करनी है, तो इट रिक्वायर्स सम केस स्टडीज। सो वी हैव टू कंस्टिट्यूट ए expert, a team of experts, they will decide, then they will discuss and they will come out with some output. So that case study is required when there is some critical and we are not able to understand the pattern of anything, the facts and information whether it's valid or not valid. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केस स्टडीज करते हैं। उस पे केस को हम एज ए केस बना के उसमें डिफरेंट फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देन
the different team of the expert will be analyze the data on the basis of the all the facts collected. तो केस स्टडी होती है. Oral historical interview means it is suitable when we are not able to find the data. कोई भी हमें कोई भी facts नहीं मिला, कोई भी when we are not able to find any facts and information regarding any history, कोई भी हिस्ट्री के से रिलेटेड हमें कोई फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन नहीं मिला, कोई भी हमने रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई भी फाइल कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं कोई भी हमें नहीं मिला, तो उस केस में क्या करते हैं हम, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तो ओरल हिस्टोरिकल इंटरव्यू मींस एनी पर्सन हु वाज at that time and who have information and having experience about that time about that event, so we can go and we can go a formal interview with that person and we are collect the important information, collect the information through the interview. Whatever the interview told us we will note it down in the diary and we are just collect the information through this method. तो यूज केस में है जब हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता बट हमें पता जैसे the person who was the as a part and participants in the freedom fighting at the time of the नेताजी सुभाष चंद्र बोस. इस तरह आजकल बहुत सारे लोग they are no more but कुछ भी लोग हैं अब जो उस टाइम के जो था during the जो पार्टीशन है during the partition जो थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से रिलेटेड हमने कोई रिसर्च करनी है तो उस टाइम पे जो भी पर्सन थे तो उससे हम इंटरव्यू लेके अगर डाटा कलेक्ट है तो इट्स ओके, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर हिस्टोरिकल इंटरव्यू. बट उस केस में जब हमारे पास कोई रिटन फैक्ट्स नहीं है इंफॉर्मेशन नहीं है देन वी कैन कंडक्ट द ओरल हिस्टोरिकल इंटरव्यू. देन कंपैरेटिव रिसर्च, तो इसमें क्या है कंपैरेटिव रिसर्च करते हैं कि जेनेटिक्स पे कई बार रिसर्च करते हैं, कई जो कोई स्कल मिल गया किसी का, ठीक है, कंकाल मिल गया तो उसका जो पैटर्न चेक करते कि जो पहले जो पैटर्न क्या था, आजकल जो स्ट्रक्चर है या जो बोन स्ट्रक्चर है या हड्डियों का ढांचा है जो स्कल है वो लोगों में कैसा है, पहले कैसा था, पहले कितने मजबूत क्यों होते थे लोग, आज के दिन एवरेज लाइफ लोगों की कम क्यों होगी, पहले ज्यादा क्यों थी. तो उससे रिलेटेड हम एक हिस्टोरिकल जो डाटा लेकर और आज के डाटा के साथ या डिफरेंट इवेंट डिफरेंट टाइम का हम कंपेयर करते हैं तो वो हमारी कंपैरेटिव रिसर्च होती है. फॉर एग्जाम्पल हम कंपेयर करते हैं किसी भी एक मोनूमेंट को लेके, कोई भी मोनूमेंट है या कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है तो 1947 में क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या सिचुएशन थी, और आज 2023 में इसकी क्या सिचुएशन है, क्या चेंजेस आ गए हैं इसमें. तो इन दोनों के बीच में हमको स्टडी करते हैं पुरानी हिस्ट्री को लेके या 1947 से लेके हम 2000 के बीच की स्टडी करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं कोई भी हिस्ट्री की चीजों को लेके, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई इवेंट है, कोई फैक्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो हमारी होती है कंपेरेटिव रिसर्च. ये होगी हमारी हिस्टोरिकल मेथड ऑफ द रिसर्च. फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च. तो क्वालिटेटिव क्या होता है, व्हेन वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन एनी ऑब्जेक्ट, किसी व्हेन वी आर मेजरिंग द quality of a person, group or organization. तो हम किसी की भी क्वालिटी मेजर करते हैं वो चाहे कोई इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट हो या कोई पर्सन या कोई ग्रुप हो या कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन, तो ग्रुप से रिलेटेड उसके बिहेवियर को हम मेजर करते हैं, उसकी पर्सनालिटी को मेजर करते हैं, ग्रुप डायनामिक्स से रिलेटेड या ग्रुप लीडरशिप से रिलेटेड स्टडी करते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पे, उसकी वैल्यू सिस्टम पे, उसके विजन मिशन पे हम स्टडी करते हैं, किसी पर्सन की लीडरशिप या उसकी ऑनेस्टी पे स्टडी करते हैं, तो दैट ऑल द क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च. तो इस तरह की स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या तो सबसे पहले इंटरव्यू मेथड से वी कैन गिव ए फॉर्मल, वी कैन टेक ए फॉर्मल इंटरव्यू. So from that formal interviews we can collect the various information about that person, we can able to know their personality, their communication skill, their way of talking and their way of thinking, how they are thinking, how they, which type of the leadership skill that person having, what are the knowledge, the domain knowledge of that person. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम इंटरव्यू से निकाल सकते हैं किसी भी पर्सन से. तो ऑब्वियसली आप किसी भी आप फ्रेंड से भी आप बात करोगे, आप फ्रेंड्स की बहुत सारी बातें आपको आप बातें करते ही पता चल जाएगी किस तरह का नेचर है उसका, तो वो इंटरव्यू मेथड से हम कलेक्ट कर सकते हैं. फोकस ग्रुप क्या होता है, फोकस ग्रुप इज स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन
expert, a group of the expert person who have a who having the experience and prior experience about the particular problem. So we in that we constitute a group who focus a particular problem, a particular quality of the person. For example, how to improve the quality of an organization. So we have a group of expert. They can suggest how you can improve the quality of your organization. What the changes you have to make to improve the quality and the value system of your organization. तो उसके लिए फोकस ग्रुप होता है, एक टीम होती है, दे विल डिसाइड, दे विल डिस्कस एंड दे विल गिव द सम सजेस्टिव रिमार्क्स टू इम्प्रूव। देन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से भी हम बहुत सारे लोगों की हम ओपिनियन जान सकते हैं, उसका जो एटीट्यूड है उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी, उसका परसेप्शन कैसा है। तो ऑब्जर्वेशन करना है तो थ्रू हम सीसीटीवी कैमरा से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसका खाने पीने का तरीका कैसा है, रहने का तरीका कैसा है, किस तरह की वो शॉपिंग करता है, कितनी बार घर से बाहर जाता है। इफ वांट टू स्टडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग इन दैट पर्टिकुलर शॉपिंग स्टोर, कि उस शॉपिंग स्टोर से एक पर्सन है महीने में कितनी बार शॉपिंग करता है और कितने रुपए करता है और कितनी देर में बाहर आता है, इस तरह की अगर स्टडी करनी ऑब्जर्वेशन है। हम तो एक जगह खड़े होकर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी चीज को, या किसी भी कंपनी में एक बॉस ऑब्जर्व करता है अपने एम्प्लॉय को, ही कैन जस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम सीसीटीवी कैमरा, so that they can just take an important information about that person। अगर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो ऑब्जर्व ए पर्सन इन अंडर द ऑब्जर्वेशन, मान लो कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च करनी है, तो इन द साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी सम पर्सन आर अंडर द ऑब्जर्वेशन। तो उनका हम रहने खाने पीने का तरीका जानना चाहते हैं, तो वी विल ऑब्जर्व कि हाउ दे विल लिविंग, हाउ दे विल स्पेंड देयर लाइफ एंड हाउ दे विल लिविंग देयर लिवलीहुड। तो इससे रिलेटेड हमने करना है, तो उसकी साइकोलॉजी को हमें स्टडी करनी, तो वी कैन अडॉप्ट द ऑब्जर्वेशन मेथड। देन केस स्टडी, केस स्टडी वही है जो मैंने पीछे बताई थी केस स्टडी, कि केस स्टडी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन वी विल डू एंड एनालाइज the various facts and we will verify the validity and reliability of those data, and through the case studies we know the what type the quality that person having। तो एक केस आता है, अब केस के थ्रू भी हम मेजर कर सकते हैं किसी क्वालिटी को। अब वकील्स हैं, लॉयर्स हैं, अब जुडिशरी में क्या होता है, ये डिफरेंट केस आते हैं, तो केसेस से भी हमें पता चल जाता है किस तरह का नेचर है। क्रिमिनल था, क्रिमिनल माइंड है इसका, इसने कैसे किया है, क्राइम को अंजाम दिया है, उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए हम केस स्टडी करते हैं। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, तो डॉक्यूमेंट एनालिसिस वही है, कोई भी हमें क्वालिटी मेजर करनी है, देखना है, तो हम किसी सीसीटीवी कैमरा के थ्रू उसके रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो वी कैन कीप द रिकॉर्ड थ्रू द ऑडियो, ऑडियो के थ्रू, या कोई डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, या कोई वीडियो है, ठीक है। किसी की क्वालिटी आपको देखनी है तो बिल्कुल उसके सोशल मीडिया पे चले जाओ सीधा, तो लगभग 80%, सेम 80 तो मैं कह सकता हूँ 70% आपको उसकी क्वालिटी है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी पोस्ट है, ठीक है, उसकी पोस्ट हो गई, उसकी पिक्स हो गई, ठीक है, उसके ओपिनियन जो सोशल मीडिया पोस्ट, उससे ही आपको उसकी क्वालिटी का पता चल जाएगा। तो ये क्या है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं यूज करके हम, डिफरेंट कंटेंट्स को यूज करके हम उस किसी की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। हमने दे दिया कि राइट ऐसे ऐसे राइटिंग दे दी एक स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक पे, तो उस ऐसे राइटिंग से, उस डॉक्यूमेंट से हम उसका एक कम्युनिकेशन स्किल और वे ऑफ थिंकिंग, किस तरह से वो सोचते हैं, क्या लिखते हैं, उसकी राइटिंग स्किल कैसी है, तो बहुत सारी चीजों को हम उसके डॉक्यूमेंट से ही पता लगा सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, नेचर कैसा है। इसलिए ये एक क्वालिटी को मेजर कर सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं। देन क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ द रिसर्च, तो क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च क्या है, तो सर्वे है, तो सर्वे में उसमें भी था सर्वे, उसमें क्या करते हैं, सिर्फ क्वालिटी को मेजर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी को भी मेजर करते हैं। अब सर्वे के थ्रू हमने कह दिया कि हाउ मच यू आर एग्री विद ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कितना एग्री हो, तो उसमें एग्रीमेंट भी हम देख सकते हैं कि जितने भी, मान लो कोई क्वांटिटी रिलेटेड किसी को मार्क्स से स्टडी करनी है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट द मार्क्स इन द क्लास, ठीक है, एवरेज हाइट ऑफ द पर्सन इन द क्लास, एवरेज हाइट, किसी एवरेज हाइट निकालनी है क्लास के अंदर पर्सन, एवरेज हाइट, या कोई भी हमने वेट से रिलेटेड है, जहां भी नंबर की बात आती है, वेट, हाइट, डिस्टेंस, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में कितने पार्टिसिपेंट थे, कितनों ने क्रैक किया, हाउ मेनी परसेंटेज क्वालिफाई दैट एग्जाम। तो ये क्या है, सर्वे से के हम क्वांटिटेटिव डाटा को मेजर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हैं, वी कैन गो थ्रू सम एक्सपेरिमेंट, थ्रू द एक्सपेरिमेंट वी कैन गेट, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड मैंने बताया था,
हम ट्रीटमेंट ग्रुप रख सकते हैं, एक हम कंट्रोल ग्रुप रख सकते हैं, फिर हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं कि आपने ट्रीटमेंट दिया है ट्रीटमेंट ग्रुप को और एक कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, ये मान लो एग्रीकल्चर है तो इसमें हमने क्या किया, डिफरेंट फर्टिलाइजर यूज किए। तो फर्टिलाइजर यूज किए, इसमें कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं किया। तो फर्टिलाइजर यूज करने के लिए इसकी क्वांटिटी बढ़ती है कि जो पैदावार इसमें बढ़ गई। मान लो इसमें 200 क्विंटल हमारे पास हुआ, यहाँ पे हमारे पास 500 क्विंटल हो गया जो पैदावार थी गेहूं की। तो ये क्या है, ये क्वांटिटी को मेजर, जब भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, तो दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव रिसर्च। सेकेंडरी डाटा एनालिसिस है, तो वी कैन यूज द सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा है कैसे मिलते हैं, जैसे हमने कोई भी शेयर मार्केट से रिलेटेड रिसर्च करनी है, शेयर मार्केट से रिलेटेड पिछले 10 सालों का हमने 10 इयर्स का हमने एनालिसिस करना है एसबीआई की कंपनी का। तो एसबीआई का हमने 10 सालों का हमने डाटा लेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो ये क्या है, हमारा सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा मींस व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड व्हिच इज कलेक्टेड बाय एनी पर्सन एंड व्हिच बी अवेलेबल ऑन द form of the any online or offline, and by or we can just we can just get the data from the various website and the sources. वो होते second data which already collected by someone else and which are already available on the various sources, that is second data. तो इस तरह की रिसर्च करते हैं, कोई शेयर मार्केट की जो वो कंपनी के बैलेंस शीट्स को लेके हम रिसर्च करते हैं, उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। तो ये हमारी सेकेंडरी डाटा है। तो ये सारा हम क्वांटिटेटिव मेजर कर सकते हैं, कितना परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, उसकी एसेट्स कितने, टोटल कैपिटल कितनी है, लायबिलिटीज कितनी कंपनी की, पिछले साल कितनी थी, अब कितनी है। तो सब हम सेकेंड डाटा से भी हम निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन स्टडी है, ऑब्जर्वेशन स्टडी मैंने बताया था, वी कैन जस्ट गेट द ऑब्जर्वेशन स्टडी। ऑब्जर्वेशन स्टडीज में पीछे बताया था कि व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग सम पर्सन, फॉर एग्जांपल हमने फ्रीक्वेंसी हमने काउंट करनी है कि एक हमने पर्सन है जो बार बार आ और जा रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट में, या एक स्टूडेंट है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द 50 मिनट की क्लास में एक बच्चा कितनी बार बाहर जाता है, कितनी बार अंदर आता है वॉशरूम के नाम पे या किसी और नाम से। तो हम ऑब्जर्व करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी की 50 मिनट में 5 बार वो 5 टाइम्स अंदर बाहर गए क्लास के। तो इस तरह की जो मेजर करते हैं हम, जिसमें हम क्वांटिटी मेजर करते हैं किसी चीज को ऑब्जर्व करके, दैट इज द ऑब्जर्वेशन स्टडी। देन कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस पहले बताया था मैंने, कंटेंट से हम किसी की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऑडियो या वीडियो हमने देखना हो कि हाउ मेनी व्यूज, किसी के यूट्यूब पे कितने व्यूज हैं, ठीक है, उसके कितने वॉच टाइम कितना है किसी का यूट्यूब के ऊपर, कमेंट्स कितने आए हैं। तो एक कंटेंट के थ्रू हम उसको एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। हम एवरेज कमेंट्स इन ए यूट्यूब चैनल इन ड्यूरिंग द पास्ट 1 मंथ में कितने वीडियो अपलोड किए, कितने उस पर कमेंट आए, कितने लाइक्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी स्टडी करनी हो, when we are using any content, audio, video and document or any other forms, that is called the quantitative method of research. तो ये हमारे डिफरेंट मेथड थे रिसर्च के। तो इससे पहले भी मैंने एक अलग से टॉपिक करवाया था जिसमें फ्लो रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है। तो वो भी एक टॉपिक है जो इससे पहले मैं करवा चुका हूँ। मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। वो भी इससे रिलेटेड ही है। अगर दोनों को आप कंबाइन करके अगर कर लोगे तो यू नो नॉट नीड टू गो थ्रू एनी नोट्स एंड स्टडी मटेरियल, तो बेटर है वो इस वीडियो के सपोर्ट में वो वीडियो जरूर देखना, ताकि दोनों कंबाइन करके आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक है। तो थैंक यू सो मच टू बी हेयर। So please subscribe my YouTube channel Easy Notes for You Academy if not subscribe, and click on the bell icon so that you can get all the notification. तो ये मेरी यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक है। अगर आप लेना चाहते हो तो यू कैन गो ऑन माय वेबसाइट, जो मेरी वेबसाइट है easynotesforyou.com। इस पे जाके आप सर्च कर सकते हो, या बुक स्टोर का ऑप्शन होगा मेन्यू के अंदर, तो आप बुक स्टोर पे जाके उसको परचेज कर सकते हो। बुक स्टोर पे जाके आप यूजीसी नेट बुक्स की कैटेगरी में जाओगे, डिफरेंट कैटेगरी मिल जाएंगी। तो यूजीसी नेट बुक्स की कैटेगरी मिल जाएगी, उसमें सर्च करोगे तो उसमें सारी यूजीसी नेट मैनेजमेंट की भी मिल जाएगी आपकी, यूजीसी नेट कॉमर्स की भी मिल जाएगी। तो सारी बुक आपको वहां पे मिल जाएंगी, तो यू कैन बाय फ्रॉम देयर। एंड इफ यू वांट टू एनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू दिस वेबसाइट। वी ऑलवेज बी हियर टू हेल्प यू। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, हम लेके आएंगे और भी different lectures on teaching aptitude
रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड को ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो उस प्लेलिस्ट से आप टीचिंग एप्टीट्यूड का भी कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद कम्युनिकेशन का भी, आईसीटी का, हम रीजनिंग का भी करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन का धीरे धीरे हम सारा कवर करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड उसके अलावा कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।